بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ آج کی دعا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انفعنا، اے میرے پروردگار مجھے فائدہ فرما، بما علمتنا جو تو نے مجھے سکھایا ہے، وعلمنا اور مجھے سکھا، ما ینفعنا جو مجھے فائدہ دے، نفع دے، وزدنا علما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ مرکب توصیفی پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ، پھر مرکب توصیفی کا اعراب دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کو پہلے ہم اردو میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اردو میں کیا ہوتا ہے۔ اردو میں سمجھانے سے ہوتا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں، تو پھر عربی میں سمجھنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں اردو میں سمجھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن۔ دو اسماء کا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جیسے نیک مرد، جس کی تعریف بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو تعریف بیان کی جائے وہ صفت کہلاتی ہے۔ تو نیک مرد کے اندر موصوف کون کہلائے گا؟ مرد کہلائے گا، اور اس کی صفت کیا آئی ہے یہاں پہ؟ نیک آئی ہے۔ دوسرا خوبصورت گھر، تو یہ بھی مرکب توصیف ہے، دو اسم کا مجموعہ ہے۔ اس میں گھر ایک اسم ہے اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ تو موصوف کون ہوا؟ گھر، اور صفت کیا ہے اس کی؟ خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا ہے مہنگی کار۔ مہنگی کار میں کس کی تعریف بیان؟ کار کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور کیا تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ مہنگی ہے۔ تو مشہور ڈاکٹر، اس میں ڈاکٹر کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر موصوف ہو گیا اور وہ مشہور ہے، وہ اس کی تعریف ہو گئی، صفت ہو گئی۔ پرانی کتاب، تو یہاں پہ کتاب کی تعریف ہو رہی ہے اور کتاب موصوف کہلائے گی، اور پرانی جو ہے وہ اس کی صفت کہلائے گی۔ نئی سائیکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں یہاں پہ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تعریف جو ہے، صفت جو ہے پہلے آ رہی ہے، اور جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے موصوف جو ہے وہ بعد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی دو الفاظ کا، دو اسم کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کے اندر موصوف، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ صفت۔ تو یہاں پہ جس طرح لکھا ہوا ہے نیک مرد، ٹھیک ہے جی، تو نیک مرد یہاں پہ مرکب توصیفی ہے۔ تو اگر میں اس سے پوچھوں کہ اس میں موصوف کون ہے؟ مرد ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ نیک ہے۔ تو اردو میں کیا آ رہا ہے؟ نیک صفت پہلے آ رہی ہے اور موصوف بعد میں آ رہا ہے۔ تو عربی کا جو پیٹرن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ترجمہ ترتیب الٹ جائے گی۔ عرب کہتے ہیں کہ پہلے موصوف کو لاؤ جس کی تعریف بیان کرنی ہے آپ نے، پہلے ہمیں دکھاؤ، اندیکھا پیر ہم نہیں مانتے، تو پہلے لے کے آؤ اس کو جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، پھر تعریف بیان کرنا تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہے ہو کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور پاکستانی اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ تعریف کے پل باندھ دیے، پھر لے کے آؤ تو پتہ چلتا یہ بھی چائنا ہے۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا پڑے گا، تو بعد والے اسم کا پہلے ترجمہ اور پہلے والے کا بعد میں۔ اسی طریقے سے جب عربی سے اردو کریں گے تو ترتیب پھر واپس لے کے آ جائیں گے ادھر ہی۔ تو اس چیز کو یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو مرد کو عربی میں کہتے ہیں الرجلو، الرجلو مرد، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صفت بیان کرنا ہے کہ نیک، نیک کی عربی کیا ہے؟ صالح، الرجل الصالح۔ تو یہاں پہ میں نے الگ الگ اسم جو ہے اپنی اصل شکل میں لکھ دی ہے۔ الرجل مرد، الصالح نیک، الرجل الصالح۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ملا کے لکھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیے کیا بن جائے گا؟ الرجل الصالح۔ سواد یہاں پہ حروف شمسی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پیچھے سے ملانے کی صورت میں اس کی حرکت گر جائے گی۔ تو یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ الرجل الصالح، نیک مرد، ٹھیک ہے جی۔ آگے سمجھ میں یہاں پہ کوئی سوال ہے تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی۔ تو مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ چاروں اسم کے، جو ہم چار پہلو پڑھ چکے ہیں، اسم کے چار پہلو کون سے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ ان چاروں لحاظ سے جو موصوف ہوگا ویسا ہی اس کا صفت ہوگی۔ ہم نے اسم کے پہلو پڑھے تھے، اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ تازہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے آگے ہمیں
माशाल्लाह आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझने में आसानी होगा। तो पहली वुसअत है, वुसअत क्या कहलाती है? मारफा या नकरा, या तो इसम मारफा होगा या इसम नकरा। तो इसम अगर मारफा होगा, मौसूफ अगर मारफा होगा तो उसकी सिफत भी मारफा होगी, मौसूफ अगर नकरा होगा तो उसकी सिफत भी नकरा होगी। तो यानी कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि एक मारफा हो और एक नकरा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? हालत, वो क्या है? रफा नसब जर। तो मौसूफ की हालत रफा है तो सिफत की हालत भी रफा होगी, मौसूफ अगर नस्ब है तो सिफत भी नस्ब, मौसूफ अगर जर है तो सिफत भी जर आएगी। ठीक है जी, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जिन्स, जिन्स में मुजक्कर या मुन्नस, मौसूफ अगर मुजक्कर है तो जिन्स भी उसकी मुजक्कर होगी, मौसूफ अगर मुन्नस है तो सिफत भी उसकी मुन्नस होगी। और चौथी चीज आ गई है अदद, वाहिद मुसन्ना जमा, मौसूफ अगर वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ मुसन्ना सिफत भी मुसन्ना, मौसूफ जमा सिफत भी जमा। तो ये क्या होगा? चारों पहलू में मौसूफ सिफत को फॉलो करेगी। तो मुरक्कब तौसीफी सिफत इसम के चारों पहलू में उसकी पैरवी करेगी। नेक मर्द, क्या है यहाँ पे? नेक मर्द। ठीक है जी, तो नेक मर्द इसकी अरबी क्या बनेगी? अर्रजुलुस सालिहु। ठीक है जी, तो अब ये इसकी आपके सामने उर्दू आ गया और उसकी हमने सामने अरबी लेके आ गए, अर्रजुलुस सालिहु। अब वो जो चार चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमें आपसे पूछता जाता हूँ ताकि जो है ना वो सब रिकॉल हो जाए और अच्छे से जो है ना आपको याद हो जाए। ठीक है जी, तो पहली चीज मैं पूछता हूँ कि हालत, अर्रजुलु मौसूफ है यहाँ पे और अस्सालिहु यहाँ पे सिफत है। तो अब मुझे पहले अर्रजुलु की हालत बताएं कि अर्रजुलु की हालत क्या है? रफा है, माशाल्लाह। अर्रजुलु की हालत क्या है? रफा है, यानी कि ये इसम मरफू है। तो अस्सालिहु इसकी सिफत है, तो अस्सालिहु की सिफत क्या है? हालत क्या है अस्सालिहु की? रफा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख लें कि हालत में ये भी मरफू है और ये भी मरफू है। ठीक है जी, एक चीज पूरी हो गई। दूसरी चीज वुसअत, वुसअत किसे कहते हैं? वुसअत मारफा और नकेरा। ठीक है जी, तो अब ये मुझे बताएं कि ये अर्रजुलु मारफा है या नकेरा? मारफा है, माशाल्लाह। तो अब बताएं उसकी सिफत मारफा है या नकेरा? मारिफा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी ये चीज दोनों चीजों में पूरी हो गई। तीसरी चीज जिन्स, जिन्स में क्या होता है? मुजक्कर या मुन्नस। तो अब मुझे बताएं कि अर्रजुलु मर्द मुजक्कर है या मुन्नस? मुजक्कर है, तो उसकी सिफत जो है अस्वालिहु वो भी मुजक्कर है, माशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चौथी चीज क्या रहेगी? अदद, अदद यानी कि वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो आप बताएं कि ये मुरक्कब जो है, मौसूफ जो है, इसका अदद क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है, माशाल्लाह। और इसकी सिफत वो भी वाहिद है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये चारों हालतों में जो मौसूफ की कैटेगरी है वो सेम हालत में, वसत में, जिन्स में, अदद में जो मौसूफ है एज इट इज वही उसकी सिफत है। तो ये इसकी हमेशा पहचान होगी कि जो है ये मुरक्कब तौसीफी होगा, क्योंकि दोनों चारों जो है पहलू के हिसाब से ये फॉलो कर रहा है उसको। एक नेक मर्द, पहले क्या था? नेक मर्द, अब क्या है? एक नेक मर्द। तो जब भी एक आ जाए, दो आ जाए, सब आ जाए, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये नकिरा कैटेगरी है। तो तर्जमा करते हुए जो है ना अब आपने अल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो अब एक नेक मर्द का क्या तर्जमा बनेगा? रजुलुन सालिहुन। तो अब ये देखिए ये मारफा और नकरा का जो है फर्क तर्जमे में आ गया। अब क्या होगा? रजुलुन मर्द, सालिहुन नेक। और उर्दू में तर्जमा उलट हो जाता है, तो नेक मर्द, एक नेक मर्द। रजुलुन की हालत क्या है? रफा हालत है, माशाल्लाह। और सालिहुन की रफा है, माशाल्लाह। वुसअत मारिफा नकरा, पहले वुसअत की जब पूछा जाए तो सोचें वुसअत किसे कहते हैं? मारिफा नकरा कहते हैं। अब कहें कि ये मारिफा या नकरा? नकरा है, माशाल्लाह। और सालिहुन ये भी नकरा है, माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जिन्स की तरफ। जिन्स बताइए। जिन्स मुजक्कर है और सिफत की भी जिन्स मुजक्कर है, माशाल्लाह। ठीक है जी, चलते हैं अदद की तरफ। अदद इसका वाहिद है और सिफत का भी अदद वाहिद है। तो ये माशाल्लाह जो है ना इस चीज को आपने जहन में रखना है। ये दो स्लाइड्स मैंने इसलिए ऐड की ताकि वो सारी चीज रिकॉल भी हो जाए, याद भी हो जाए, और ये जो चारों इसम के हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब हम इंशाल्लाह फिर इसके आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं अरबी और उर्दू। अब बताएं कि मुस्लिमुन सालिहुन, जी मुस्लिमुन सालिहुन बताइए। नकरा है, माशाल्लाह। उर्दू में तर्जमा करें आप खाली।
ایک नेक मुसलमान, माशाल्लाह भाई, यही चीज बढ़ाना चाह रहा था कि अब आपको समझ में आ जाए कि ये क्या बात हो रही है, हमने तर्जुमा क्या करना है, ठीक है ना। माशाल्लाह, नकरा है तो आपने एक का लगाना है, दो है तो दो लगाना है, और ज्यादा है तो सब लगा देना है, तो इस तरीके से नकरा हो जाएगा। मुस्लिमुन सालिहुन, एक नेक मुसलमान, तर्जुमा तरतीब उलट, एक नेक मुसलमान, ठीक है जी। तो इससे वाज़ेह हो गया कि आपने इसको वाहिद भी बता दिया कि ये वाहिद भी है, ऐसा ही है ना, एक नेक मुसलमान। अब मुस्लिमुन सालिहुन जो है, इसको मुसन्ना बनाएं आप, मुस्लिमुन का मुसन्ना मुस्लिमानी स्वालिहानी, माशाल्लाह, मुस्लिमानी स्वालिहानी, और तर्जुमा क्या होगा इसका, दो नेक मुसलमान, माशाल्लाह भाई, ये चीज जी। अब आप इसको जमा करें, मुस्लिमानी स्वालिहान को अब जमा करें, मुस्लिमूना स्वालिहूना, माशाल्लाह, मुस्लिमूना स्वालिहूना, तर्जुमा करें, सब नेक मुसलमान, सब नेक मुसलमान। तो अब ये क्या हो गया, वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है ना। ताकि आपको वो सारी चीजें इंशाल्लाह रोजाना रिपीट करवानी है, ताकि वो कर करके अब आप बोलेंगे अब तो वैसे ही हाफिज हो गए हैं। आगे चलते हैं, अब मुरक्कब तौसीफी नकिरा को हम देखते हैं। ये वाहिद भी होता है, मुसन्ना भी होता है और जमा भी होता है, ऐसे ही है। तो मुजक्कर और, तो अब मुजक्कर इसम को देखते हैं, मुस्लिमुन स्वालिहुन, ये अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। इसका मुसन्ना मुस्लिमानी स्वालिहानी, इसकी जमा मुस्लिमुना स्वालिहूना। अब हम इसकी आते हैं मुन्नस की तरफ, इसके आते हैं मुन्नस की तरफ, ठीक है जी। तो अब आपने इस मुजक्कर जो मुरक्कब तौसीफी का मुरक्कब है मुजक्कर में, अब इसको हमने किस में करना है, मुअन्नस में, ठीक है जी। तो मुस्लिमुन स्वालिहुन, आप शुरू करें। हाँ, मुस्लिमतुन स्वालिहतुन, ये हो गया इसका मुअन्नस में मुरक्कब तौसीफी। अब तर्जुमा क्या होगा इसका, एक मुसलमान, एक नेक मुसलमान औरत, मुसलमान औरत, मुअन्नस, ठीक है जी। अब इसका मुसन्ना करना है आपने, जी बेटा आप मुसन्ना बनाएं इसका, आप कर जी, माशाल्लाह, मुस्लिमा तानी स्वालिहा तानी, तर्जुमा करें, माशाल्लाह, दो नेक मुसलमान औरतें, माशाल्लाह, ठीक है जी। चले जी, अब इसकी जमा करें, मुस्लिमात जमा, मुस्लिमात तुन स्वालिहातुन, मुस्लिमातुन स्वाल, ये तो उर्दू के लफ्ज हैं, मुस्लिमात उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, आजकल नहीं होते, तो इस वजह से हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है जी। मुस्लिमातुन स्वालिहातुन, ठीक है जी। तो ये जमा में देखें, मुजक्कर का मुजक्कर से मुअन्नस बनाना वाहिद का एक ही तरीका है, दोनों में देखें सेम है। आखिर में क्या गोलता इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुसन्ना के अंदर क्या है, आनी का साउंड आ जाएगा, इसमें भी आखिर में ता के बाद आनी आ जाएगा, मुस्लिमा, ठीक है, तानी। अच्छा, जमा के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है, मुजक्कर में क्या साउंड आता है, ऊना ऊना, और मोनस में आतुन। अब मुरक्कब तौसीफी हम मारफा देखते हैं, अभी नकिरा देख रहे थे ना, अल नहीं लगा हुआ था, अब हम इसका मारफा देखते हैं, अल वाले में क्या हो जाता है, ठीक है जी। तो वो जो मुस्लिमुन स्वालिहुन था, जब इस पे अल लगेगा, मारफा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमुस स्वालिहु, वो अल लग गया, अल लगने से क्या हो गया, इसके अंदर क्या चेंजेस आई, क्या तब्दीली आई, खास हो गया, और दूसरी क्या तब्दीली आई, दो तब्दीली आ जाती है ना, एक नकरा से मारफा बन जाता है, और दूसरी तब्दीली क्या आती है, आखिरी हर्फ एराब की तब्दीली आती है, माशाल्लाह। तो आखिरी हर्फ क्या हो गया, दो पेश से एक पेश हो गया। अल जब भी लगेगा तो दो सूरतें हैं कि नकरा आम से खास हो जाता है, और दूसरी ये होता है कि उसका जो एराब दो पेश वाला होता है, तो फिर वो दो पेश वाला जो है वो एक पेश में चला जाता है, ठीक है जी। तो अल मुस्लिम सालिहु, इसका मुसन्ना बनाएं, अभी मुसन्ना बनाएं आप इसका, तर्जुमा तो हो गया नेक मुसलमान ना, ठीक है। अब इसकी जो है ना मुसन्ना बनाएं, अल मुस्ली मा नहीं, माशाल्लाह, अल मुस्ली मानी अस्वाली हानी, माशाल्लाह, बस अलिफ और नून से नी का इजाफा कर देंगे तो वो मुसन्ना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो अल मुस्लिमानी अस्वाली हानी, ठीक है। अगर फिलहाल अकेले अकेले ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, समझाने के लिए ग्रामर के लिए तो वो चलेगा फिलहाल, ठीक है जी। तो अब तर्जुमा क्या हो गया, हाँ, दो नेक मुसलमान, लेकिन अब ये मारफा है या नकिरा है, मारफा है, ठीक है ना, मारफा है। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि किसी खास की बात हो रही है, अल्लाह या खास की बात हो रही है, ठीक है जी।
तर्जुमा जमा करें इसकी, शान भाई जमा करें। अल मुस्लिमूना अस्सालिहूना, अल मुस्लिमूना अस्सालिहूना, तर्जुमा सब नेक मुसलमान, लेकिन ये मारफा में आ गया, खास हो गया, अल की वजह से हमें पता चल गया कि ये क्या है, खास। अब इसके मुन्नस की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो वाहिद की मुन्नस कौन बनाएगा जी? अल मुस्लिमतु अस्सालिहातु, अल मुस्लिमतु अस्सालिहातु, मिला के पढ़ेंगे तो अल मुस्लिमतु अस्सालिहातु, माशाल्लाह। ठीक है जी, अब इसका मुसन्ना बनाएं, अल मुस्लिमतानी अस्सालिहातानी, माशाल्लाह, अल मुस्लिमतानी अस्सालिहातानी, माशाल्लाह। अब जमा, जमा बनाए बेटा, अल मुस्लिमातु अस्सालिहातु, माशाल्लाह। ठीक है जी, अल मुस्लिमातु, देखें जब तक इराब पूछा ना जाए कि नसब या जर है, तो तब तक आपने हर इस्म को रफा ही रखना है, ठीक है ना। जब नसब जर होगा तो वो कहा जाएगा कि नसब जर बनाओ इसका, जब कहा जाएगा तो फिर आपने इसको थोड़ा सा उसमें लेके आने। अल मुस्लिमातु सालिहातु। चलें जी, तो अब चलते हैं मुरक्कब तौसीफी के एराब की तरफ। एराब अब आएगा मुसन्ना, मरफू, मंसूब और मजरूर। अभी हम नकरा इसम को लेते हैं पहले, ठीक है जी। तो अब इसकी मरफू हालत, अब सिर्फ एक इसम बताऊंगा इंशाल्लाह वाहिद, और उससे अब आपने जो है ना आगे चलाना है इसको, ठीक है जी। जी, मरफू मुस्लिमुन सालिहुन, इसका मुसन्ना बनाएं। मुसन्ना से आप लोग क्या समझते हैं कि शायद औरत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स में ना यही वाली मसला आ जाता है कि जब मुसन्ना की बात समझते हैं तो वो कहते हैं कि शायद कोई औरत की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, मुसन्ना का मतलब दो, तो इसका मुसन्ना बनाएं, मुस्लिमानी सालिहानी, और इसकी जमा मुस्लिमूना सालिहूना। अब इसकी मंसूब हालत बतानी है। मंसूब हालत की पहचान क्या थी? दो जबर, माशाल्लाह, और दो जबर के साथ अलिफ भी आता है, तनवीन वाले हिस्से में दो जबर के साथ अलिफ भी आता है। तो मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा? मुस्लिमन। सालिहुन से क्या हो जाएगा? सालिहन। मुस्लिमन सालिहन, तो ये मंसूब हालत हो जाएगी। अच्छा, मंसूब हालत होने से तर्जुमा में कोई तब्दीली हो जाएगी? तर्जुमा तब्दील नहीं होगा, कुछ तब्दील होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हन, याद आ गया सबको? मुस्लिमन सालिहन। अब दूसरा मुसन्ना, मुस्लिमानी सालिहानी। जी जी, मुस्लिमैनी सालिहैनी, माशाल्लाह, मुस्लिमैनी सालिहैनी। नसब हालत में और जर हालत में क्या कर देना? अलिफ की जगह या साकिन लगा देना, बस, दैट्स इट। तो वो उसकी नसब और जर हालत हो जाएगी, ठीक है जी। अब जमा बनाएंगे, कौन बनाएगा जमा? माशाल्लाह, मुस्लिमीना सालिहीना, मुस्लिमीना सालिहीना। अब देखिए मुसन्ना और जमा में क्या फर्क आ रहा है? मीम के ऊपर जबर और यहाँ पे मीम के नीचे जेर। जब मई नहीं आए तो मुसन्ना, जब मी ना आए तो जमा। मुस्लिमैनी मुसन्ना हो गया, मुस्लिमीना जमा हो गया। मजरूर में क्या हो जाता है? मुस्लिम, मरफू हालत मुस्लिमुन सालिहुन, मंसूब मुस्लिमन सालिहन, मजरूर मुस्लिमिन सालिहिन, माशाल्लाह। देखें आपको रिकॉल हो रहा है ना, खुद ही रिकॉल हो रहा है, माशाल्लाह। ठीक है जी। अब देखें, जो मैंने पहली चीज बताई थी कि इसम जो है ना वो चारों हिसाब से जो है ना बराबर होगा। तो अब यहाँ पे एराब की बात हो रही है, तो मरफू हालत में उस पे भी दो पेश, उस पे भी दो पेश। मंसूब में आए तो इस पे भी दो जबर अलिफ, इस पे भी दो जबर अलिफ। मजरूर में आए तो इस पे जेर, दो उस पे जेर, मौसूफ पे भी जेर और सिफत पे भी जेर। तो अब देखिए बैलेंस नजर आता है कि भाई ये दोनों जो है ना बैलेंस है, ये जो ग्रुप है वो सेम लग रहा है। तो ये पहचान है कि ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। मजरूर हालत बनानी है इसकी, मुसन्ना की, कौन बनाएगा? मुस्लिमैनी सालिहैनी, माशाल्लाह, ठीक है जी। अब यहाँ आगे जमा मुस्लिमूना सालिहूना, उसकी मंसूब हालत होगी मुस्लिमीना सालिहीना। तो इसकी जर हालत क्या होगी? शान भाई जी आप बताएं। मुस्लिमीना सालिहीना, तो इनकी बस ये चीज याद रखें कि दो पेश और एक पेश आए तो उसकी फिर एराबी हालत अलग रहेगी। और अगर जब एराब बिल हरूफ आ जाए, आनी जिस तरह हर्फ के साथ आ गया, तो नसब जर उसकी सेम होगी। यहाँ पे ऊना, तो ये भी हरूफ के साथ एराब है, तो इसकी भी नसब और जर सेम हो जाएगी। चलते हैं, अब ये क्या था? नकिरा, नकिरा ग्रुप था। अब हम इसके मारिफा ग्रुप की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो मुस्लिमुन सालिहुन से क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमु अस्सालिहु। जी, इसका मुसन्ना मुसन्ना
मुज़क्कर है, मुन्नस नहीं है जी। अल मुस्लिमानी अस्सालिहान, माशाल्लाह। जमा जी, अल मुस्लिमूना अस्सालिहूना, ठीक है जी। तो ये देखिए मरफू है, जब मरफू चल रहा है तो आपने वही जो बेसिक किस्म है वही है। मंसूब, अल मुस्लिमू अस्सालिहू की मंसूब हालत जी, आप बता दें। अल मुस्लिम, अल मुस्लिमा अस्सालिहा, ठीक है। एक पेश थी आखिर में, एक जबर आ गई। एक पेश थी, एक जबर आई। दो पेश थी, दो जबर आई। एक पेश थी, एक जबर आ गई, ठीक है जी। अब बनाए मुसन्ना, बनाए इसका मुसन्ना, एराबी हालत मंसूब जी। अल मुस्लिम, हाँ मई, मई जबर के साथ। अल मुस्लिम मई नहीं, अस्सालिहीन, माशाल्लाह, जबर के साथ, ठीक है ना। मुसन्ना में जबर, जमा में जेर, मीम पे आखिरी हर्फ पे। मुसन्ना जब दो की बात हो रही तो मीम पे जबर आ जाएगी, जब दो से ज्यादा की बात हो रही मीम पे जेर आ जाएगी, बस माशाल्लाह, ठीक है जी। अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमैनी अस्सालिहीन। अब जमा बनाए जी। चले तो अब इसके मजरूर की तरफ आते हैं जी। मजरूर बनाइए इसका। अल अल मुस्लिम अस्सालिही, माशाल्लाह। मरफू हालत में एक पेश, मंसूब में एक जबर और मजरूर में एक जेर। जब अल लग जाता है तो फिर शक्लें तीन हो जाती हैं। अल लग जाता है तो शक्लें तीन हो जाती हैं जी। मुसन्ना बनाए इसका। अल मुस्लिम, अल मुस्लिमैन अस्सालिह, माशाल्लाह। मुसन्ना इसका अल मुस्लिमैनी अस्सालिहीन, ठीक है। जब इराब आ जाएगा, तनवीन और एक पेश वाला नहीं होगा, जब आनी ऊना का आएगा तो उसका मंसूब और मजरूर दोनों एक ही बनेगा, दोनों एक ही बनेगा जी। जमा में क्या है, अल मुस्लिमीना अस्सालिहीना। चलें जी, अब आपने मुरक्कब तौसीफी पहचानने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाएगी, ये सारे मिक्स होके आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको पहचानना होगा, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, सय्यारतुन जमीलतुन। तो इसका किसी अगर अरबी लफ्ज का तर्जमा नहीं आए तो पूछ लें, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसका तर्जमा क्या है जी। आता है तर्जमा इसका, एक खूबसूरत सितारा नहीं, यह है सैयारा। सैयारातुन कहते हैं कार को, सैयारातुन कार को, और जमीलतुन खूबसूरत। अब तर्जमा करें कोई, एक खूबसूरत कार, एक खूबसूरत कार। अच्छा, आपने एक खूबसूरत कार क्यों तर्जमा किया, खूबसूरत कार तर्जमा क्यों नहीं किया? नकरा है, माशा, ऐसा ऐसा परफेक्ट होंगे ना, तो इसलिए गलतियां कर रहे हैं आप। जो भी गलती करेंगे जब उसको सही करेंगे वो आपको ज्यादा याद रहेगी। तो स्टूडेंट हो, गलती करे कोई मसला ही नहीं है, समझो वो सीख रहा है, सही है ना, माशाल्लाह जी। तो अब मुझे ये बताएं कि अब हम इसके वो चारों चीजें पूछते हैं आपसे। सैयारा, तो उनकी हालत क्या है, रफा नसब जर, रफा है, और इसकी हालत रफा है, माशाल्लाह, ठीक है जी। दूसरी चीज वसत, वसत नकिरा, माशाल्लाह, और मौसू सिफत नकिरा, माशाल्लाह। तीसरी चीज है जिन्स, मुजक्कर या मोन्नस, मोन्नस, और सिफत मोन्नस। मोन्नस कैसे पहचाना आपने, आखिर में गोलता है, माशाल्लाह, ठीक है जी। अदद वाहिद, मुसन्ना जमा वाहिद है, माशाल्लाह, और सिफत भी वाहिद है। तो चारों पहलू से बिल्कुल ठीक है, तर्जुमा भी आपने ठीक किया तो माशाल्लाह हो गया, ठीक है जी। आगे चलें। वलदानी जमीलानी, वलदानी जमीलानी जी। वलद बेटे, माशाल्लाह, दो बेटे, माशाल्लाह, दो बेटे हो गए, और जमीलाने दो खूबसूरत। तर्जुमा क्या होगा, दो खूबसूरत बेटे। असल में लफ्ज पड़ता है, ये लड़के, हमारे यहाँ होता है ना, एक बेटा लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक होता है लड़का, ठीक है। तो यहाँ बेटे का तो अरबी है इब्नुन, तो लड़के की अरबी क्या है, वलद, ठीक है ना, वलदुन। तो दो खूबसूरत लड़के, ठीक है जी, दो खूबसूरत लड़के, ठीक है जी। हालत बताएं इसकी क्या है, रफा नसब जर, नसब है जी। कोई और, रफा है, माशाल्लाह। आनी देखें, वलदुन, वलदानी, औलाद इसकी जो है जमा सालिम नहीं होती इसकी, ठीक है ना। वलदून नहीं, इसकी जमा सालिम नहीं, इसकी मुकस्सर होती है, वो औलाद बन जाता है, जो उर्दू में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो हालत इसकी क्या है, मरफू है, माशाल्लाह, और सिफत भी मरफू। बस जब मुरक्कब तौसीफी आ गया तो जो पहला होगा वो दूसरा भी वही होगा। अच्छा जी, वसत मारफा नकिरा,
जी शान भाई, वसत नकरा है माशाल्लाह, और सिफत की भी वसत नकरा है माशाल्लाह। जेंट्स मुजक्कर मोनस, मुजक्कर है, लड़का है तो मुजक्कर ही होगा माशाल्लाह, और वो भी मुजक्कर हो गया। तो अदद वाहिद मुसन्ना जमा मुसन्ना, देखिए अब यहाँ पे चेंजेस आ गई ना, मुसन्ना हो गया तो इसकी सिफत भी मुसन्ना आ गया। ठीक है जी, आगे चलें। जी, बिनतानी तवीलतानी, तर्जमा रिजवान भाई, बिनतानी तवीलतानी। बिंत, आप जो है ना पहले तीन हर्फ को पकड़ लिया करें। बिंत, बिंत क्या बता रही है? लड़की, बेटी, ठीक है ना। तो बिनतानी दो, हाँ माशाल्लाह, तवील लंबी, दो लंबी लड़कियां माशाल्लाह, दो लंबी लड़कियां, ठीक है जी। अच्छा सर, बेटी जो होती है ना वो इब्नातुन होती है, बेटी, ठीक है ना। लेकिन बिंत क्योंकि अरब में ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो इब्ना जो है ना वो बिल्कुल होते हुए भी गायब हो गया। इस्तेमाल के ऊपर है ना कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ मेरे दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, ठीक है ना। मेरे चार बच्चे हैं, अब बेटे बेटियां सब उसी में आ गई। दो लड़का दो लड़कियां हैं, अब अलग, ये कितना देखो तीन तरीके से आप जो है ना वो उसको बता सकते हैं। तो अरबी के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बिनताने तवीलताने, दो लंबी लड़कियां, ठीक है जी। हालत आपको तर्जमा करने से भी पता चला, बिंत कहते हैं बेटी को, दो लंबी बेटियां, सही है ना। तो वो वैसे भी तर्जमा भी नहीं बनता, उर्दू में भी सही नहीं बनता कि दो लंबी बेटियां, है ना, तर्जमा भी नहीं बनता। तो आपको तर्जमे से भी एहसास हो जाएगा कि इसका तर्जमा जो है ना कोई दूसरा वाला इसका मौजू ले ले। जी, तो हालत मरफू है माशाल्लाह। और वसत, बेटा आप बताओ जी, वसत मारफा या नकरा? नकरा है माशाल्लाह। जेंट्स मुजक्कर मोनस, मोनस है माशाल्लाह। अदद वाहिद मुसन्ना जमा मुसन्ना माशाल्लाह, ठीक है। जब देखें ये इसने पढ़ा भी नहीं है बेचारे ने, बीच में आया, लेकिन माशाल्लाह अच्छा प्रोग्रेस है इसकी। अल मुमिनूना, अल मुफलिहूना, जी शान भाई आप बताएंगे। मोमिन, मोमिन की जमा मोमिनून, और मुफलिहुन, मुफलिहुन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मुफलिहुन फलाह पाने वाले, कामयाब। जी, तो क्या तर्जुमा बनेगा? फलाह पाने वाले मुसलमान या कामयाब मोमिन, ठीक है ना। तो ये दोनों जमा के अंदर है, तो जमा के अंदर कामयाब मोमिन। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो वाहिद का भी वही तर्जुमा होता है और जमा का भी वही तर्जुमा, कामयाब मोमिन। हालत क्या है इसकी? मरफू है माशाल्लाह। वसत, वसत मारफा नकरा, अल लग गया तो मारफा हो गया माशाल्लाह। जेंट्स मुजक्कर मोनस, मुजक्कर माशाल्लाह। अदद जमा हो गया माशाल्लाह। मोमिनैन मुफलिहैन, नकरा कैटेगरी माशाल्लाह। मोमिन नून, आखिरी हर्फ पे देखें जबर है, जबर है दो, और जेर है जमा, नसब हालत में, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हालत क्या है इसकी? हालत क्या है इसकी? रफा नसब जर, मरफू मंसूब मजरूर, मंसूब है माशाल्लाह, सिर्फ मंसूब है, मंसूब और मजरूर है माशाल्लाह, मंसूब और मजरूर है। वसत मारफा नकरा, नकरा माशाल्लाह। जिन्स मुजक्कर माशाल्लाह। अदद मुसन्ना माशाल्लाह, मुसन्ना भाई यही फर्क रखना है। आखिरी हर्फ मोमिन का आखिरी हर्फ नून, नून पे जबर तो दो, नून पे जेर तो जमा, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह ये बार बार मैं इस तरह से रिपीट करता रहूंगा, आपको भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अल आयातुल बय्यिनात, अल आयातुल बय्यिनात, तर्जुमा वाजे आयात या वाजे निशानियां, आयात का तर्जुमा निशानियां भी होता है, ठीक है जी, वाजे निशानियां। चले जी, हालत बताएं इसकी, मरफू मंसूब मजरूर। जी बेटा आप बताओ। आयातू है, पेश है, जब भी पेश आए ना एक हो या दो हो तो इसका मतलब है कि वो मरफू है। जब भी पेश आए एक हो या दो हो तो इसका मतलब क्या है, वो मरफू है, ठीक है। ये तो बिल्कुल पक्का वाला रूल है ना, पेश वाला तो। अच्छा जी, तो ये क्या है? मरफू है, तो अलबय्यिनात भी मरफू हो गया। वसत मारफा या नकिरा? मारफा है, कैसे पहचाना मारफा है? अल की वजह से माशाल्लाह। जेंट्स मुजक्कर मोनस, जेंट्स मुजक्कर मोनस, मोनस आयात, आयतुन गोलता जमा में आ गया, गोलता लंबी ता में बदल जाती है आयात,
मोहनदास, ठीक है। आखिर में जो गोलता होती है ना, वो आमतौर पर उर्दू में लंबी ता इस्तेमाल हो जाती है। आयत कैसे लिखते हैं हम? लंबी ता के साथ। और अरबी की आयतुन क्या होता है? गोलता, छोटी जो होती है। अदद, जमा। देखो आनी की आवाज भी नहीं आ रही, ईना की आवाज भी नहीं आ रही। आपको होता था कि जमा मुजक्कर का साउंड बिल्कुल अलग है, ऊना ईना, और जमा मुन्नस का आयात, आयातुन या आयातू, दो पेश या एक पेश। ठीक है जी, तो जमा है ये। ठीक है जी, माशाल्लाह। थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल से तो हैवी नहीं है, क्योंकि ये चारों इसम आप पढ़ चुके थे। असल में सारा जमा हो गया ना एक साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा हैवी लगता है, फील होता है। लेकिन आप एक बार भी घर जाके पढ़ेंगे ना, तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है। आपकी बुक के अंदर जो प्रैक्टिस लिखी हुई है मुरक्कब तौसीफी चैप्टर में, जो पहली मश्क है अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, ये अगर एक बार बैठ के कर लेंगे ना, ठीक है ना, चाहे देख देख के भी करें, बुक सामने होगी ना आपके, उसको देख देख के भी करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको ये पक्का हो जाएगा। तो मुरक्कब तौसीफी में जो पहला वाला चैप्टर है, उसमें आप देखें, तो जो भी एक्सरसाइज की हुई है उर्दू से अरबी या अरबी से उर्दू, तो उसको करें, इंशाल्लाह जो है वो बहुत फायदा होगा आपको।